सच्चाई वोकल, कभी ग्लोबल कभी लोकल। मैं हूँ इस शो की होस्ट नेहा त्रिपाठी और आज मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ। ट्रैफिक का शोर तो हर रोज सुबह शाम की कहानी है। कभी आपने ध्यान दिया है कि ये शोरोगुल, ट्रैफिक में गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात करना, यानी मल्टीटास्किंग व्हाइल ड्राइविंग आपकी पर्सनालिटी को कैसे बदल रहा है। सड़क पर ड्राइव करते हुए ऐसा नहीं लगता है कि पैदल चलने वाला हर शख्स और हर व्हीकल, चाहे वो गाड़ी हो, स्कूटर हो या बाइक, सभी आपका पेशेंस टेस्ट करने में लगे हैं। सभी को बचाने की जिम्मेदारी बस आपकी है। कोई भी कहीं से भी प्रकट हो सकता है। लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट जाने वालों को देखकर खून खौलता है। ऐसा लगता है जैसे दफ्तर या घर का काम करके इतना नहीं थके जितना 2 घंटे सड़क पर गाड़ी चलाकर थक गए। इस सब के पीछे एक साइकोलॉजी काम करती है जिसे ट्रैफिक साइकोलॉजी कहते हैं। इस साइकोलॉजी को समझने से पहले इस टर्म को समझ लेते हैं। हमारे साथ हैं अनाघा पुलनगोट्टे। आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद में ट्रैफिक साइकोलॉजी पर रिसर्च की है। आइए अनाघा से समझते हैं कि ट्रैफिक साइकोलॉजी का क्या मतलब है। Okay, so like any other branch, it's of course a branch that study about the human behavior, but it's also related to with respect to the traffic in the sense the movement of people basically, or the movement of vehicles. So it can be the vehicles on road, or it also includes the railway and the aeroplanes as well. So it's all about these transportation or the traffic system as well. So there are main 3 particular areas in which we generally work, which are about the human behavior in particular, how the driver behaves, how the pedestrians behave, how the other people, like generally road users behave. And the second one is regarding the design of the vehicle, how the vehicle is designed, the ergonomics of it, and how people would react to a particular design of the vehicle and so on. And the third one is the environment. So that includes both the road infrastructure as well as the other environmental constructions and infrastructure that are around the road, which are used by the road drivers. So these are the main areas which are included in the traffic psychology. सड़क पर ड्राइविंग के सुखद एहसास के लिए कई चीज़ों का तालमेल बहुत ज़रूरी है, जैसे व्हीकल, ड्राइवर, ट्रैफिक, एनवायरनमेंट और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। इन 5 पहलुओं में अगर सामंजस्य हो तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है, लेकिन ये सामंजस्य मुश्किल होता है। लोग गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं, ट्रैफिक स्लो कर रहे हैं। 4 लेन में चलने वाले व्हीकल्स को अचानक 2 लेन में मर्ज होना होता है। ट्रैफिक धीमा हो जाता है। रास्ते में कोई व्हीकल खराब है या पीक आवर्स में फुटपाथ पर लगे पौधों को पानी देने के लिए या स्ट्रीट लाइट ठीक करने के लिए सरकारी गाड़ी खड़ी है। नतीजा, ट्रैफिक स्लो हो जाता है। सड़क किनारे सब्जी या फल बेचने वाली रेहड़ियां लगी हैं। लोग वहीं गाड़ी पार्क करके खरीदारी कर रहे हैं, यानी सड़क की 2 लेन तो गई। ये सब देखकर गुस्सा आता है, कुड़हन होती है। ये सब सुनकर आपको खुद की याद आ रही है या किसी जानने वाले की? दोनों ही सूरत में नुकसान आपका और देश का है। हमारे साथ अनाघा बनी हुई है। अनाघा, वाहन चलाते हुए इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आता है? One factor that I could just pick out is that human beings are actually diverse in nature. We know that, like more than before now, because of the globalization and the movement, the settlement of people, migration, immigration, all of that socio-economic factors, various kinds of human beings from different cultures and everybody have come together to a particular place. So so imagine if I'm living in a particular place and there is a particular culture for this place, okay, like when we're looking about the very authentic culture of that place. But now what's happening is people are moving around and this culture is getting mixed.
So as a result, this behavior, every other behaviors we see on the road are not coming from one particular culture or one particular place. So one behavior that's suitable for that particular culture may not be acceptable or will be very hostile for the other culture. So that can be a factor. यहाँ हमारे साथ बातचीत में जुड़ रही हैं डॉक्टर पुष्पा चौधरी। आप आईआईटी रुड़की के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपकी स्टडी ड्राइविंग बिहेवियर, पेडेस्ट्रियन बिहेवियर या ट्रांसपोर्टेशन में ह्यूमन फैक्टर्स पर है। डॉक्टर पुष्पा से समझते हैं कि इस गुस्से को कैसे रोका जाए। गाड़ी में तो मेडिटेशन भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या करें? Right. What we are doing the research is कि हम उसको मतलब ह्यूमन एरर तो होगी, आप कितना ही उनको एजुकेट करो, आप उनको कितना ही ट्रेनिंग दो, आप उनको कितना ही अच्छा रोड दे दो, मतलब यू डोंट हैव दैट। आप अभी जो बोल रही थी कि व्हीकल्स आ गए बीच में, कोई सडनली चाय वाला आ गया और उसकी वजह से जाम हो गया, आप ये सब भी हटा दो, बट स्टिल कोई घर से गुस्सा लेके चला है, तो वो रहेगा, राइट? वो आप नहीं कंट्रोल कर, वो आप नहीं कर पाओगे। इट्स नॉट कि सिर्फ ट्रैफिक की वजह से ही हमें एग्रेशन आ रहा है, तो वो एग्रेशन आपका कहीं से भी ओरिजिनेट हो सकता है, बट वो आपका रोड पे है। तो हम जाते हैं फिर टेक्निकल सॉल्यूशंस की तरफ। आई मीन बीइंग अ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर एंड आई मीन रिसर्चर इन दैट एरिया, वी लुक फॉरवर्ड कि अब ह्यूमंस को कैसे असिस्ट करें कि वो जो है वो एरर कर भी रहे हैं तो भी जो इन्वायरमेंट है वो टेक केयर करे इसका। तो फिर हम जैसे आजकल सेंसर्स लगे होते हैं गाड़ी में जो आपका टोटल रीडिंग करते हैं, इवन द आईलिड्स, और यू हैव द वेरिएबल सेंसर्स जो आपका पूरा बॉडी का वो चेक करते हैं, सारी चीजें चेक करते हैं। तो उससे आपका पता चलता है कि यू आर इन योर नॉर्मल फॉर्म और यू आर इन लिटिल हायर साइड इन द एग्रेशन एंड ऑल। तो वो एक काइंड ऑफ वार्निंग दे सकते हैं कि you should control your emotions, control your this thing, driving, or be attentive to your driving. So that kind of click might work कि अच्छा ठीक है मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे मतलब सड़क पे देखना चाहिए, it can be dangerous like that. तो जो इस तरीके के सॉल्यूशंस की तरफ हम देखते हैं। पर जब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊं, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है जब हम देखते हैं कहीं पे जाम लगा है, बट द बाइकर्स दे वांट टू गेट इनटू दोस छोटा छोटा जगह जो भी है वहां से निकलने की कोशिश करेंगे, फुटपाथ से निकलने की कोशिश करेंगे, और फिर वो आगे जाकर के जहां पर वो थोड़ा सा ठीक होने वाली जगह होती है वहां पे वो सब घुस रहे हैं और आपकी गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी है और आप देख रहे हो कि ये लोग घुस रहे हैं, इस वजह से हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। दूसरी चीज ये होती है कि पैदल चलने वाले लोग, कितने भी बिजी रोड हो, आपको फुटओवर ब्रिजेस होंगे, आपके सबवेज होंगे, एवरीथिंग इज अवेलेबल, बट यू हैव टू जंप in front of a running car or a running vehicle to cross the road. You will not even wait कि रेड लाइट हो जाए या आपके लिए पेडेस्ट्रियंस के लिए ग्रीन लाइट हो जाए। ये एक अजीब सी साइकोलॉजी है कि लोग ऐसा करते हैं और हम ये सड़क पे देखते हैं। हो सकता है हम में से भी कोई ऐसा करता हो जब हमारा मौका है, लेकिन हम सभी इस चीज को देखते हैं। हमारे लिसनर्स, व्यूअर्स भी हमारे साथ रिलेट कर पाएंगे। दे सी दिस, ये होता है सड़क पे। What kind of psychology is this? Behind this steering and behind this, be any vehicle, behind this actually wheels are actually human beings, right? So we also have to consider, rather than seeing them as pure machines, these machines are manipulated by the human beings. So these machines will show the characteristics of the human being. So we shouldn't actually judge a vehicle as a machine, but we should see that these are people who are driving. So that thing has to be kept in mind over and over again before taking every action. गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात नहीं करनी चाहिए। हर जगह लिखा है, हर जगह ये चीज होती है कि गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात नहीं करनी है। लोग इस चीज हमें पेनल्टी है। हाँ बिल्कुल, पेनल्टी के डर से ही सही, लेकिन लोग नहीं कर रहे। बट इसमें बहाना ये बना रहे हैं, जैसा हम देखते भी हैं और शायद हम खुद भी करते होंगे, हैंड्स फ्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वी आर नॉट using the phones in our hand, फोन तो साइड में रखा है, हम ड्राइविंग पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, वी आर यूजिंग हैंड्स फ्री। ये कितना मददगार है, क्या ये डिस्ट्रैक्शंस को बचाता है? और यहाँ पर एक सवाल और जोड़ूंगी कि द मैप्स दैट वी यूज, आजकल गूगल मैप्स हमें यूज करना पड़ता है अगर हम कहीं भी जा रहे हैं, तो वो भी एक्चुअली हम फोन यूज कर रहे हैं और हम गाड़ी की स्क्रीन पे ही देख रहे हैं, बट क्या उसको भी डिस्ट्रैक्शंस में काउंट किया जाएगा? इन दोनों को कैसे बैलेंस करेंगे डॉक्टर पुष्पा? Yes, exactly. Those terms are nothing but distraction.
दे आर दीज एक्टिविटीज, ये सब की सब डिस्ट्रैक्शन है। आप कुछ भी कर रहे हैं गाड़ी चलाने के अलावा और सड़क देखने के अलावा, आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप अपने पैसेंजर से बात कर रहे हैं साथ में बैठा हुआ है, वो हाँ भी आपके लिए एक डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटी है। तो ये सब डिस्ट्रैक्शन की कैटेगरी में आता है। डिफरेंस सिर्फ जैसे आपने कहा कि लोगों का मानना है कि वो फोन हाथ में पकड़ के बात करेंगे तो शायद कम मतलब ज्यादा इफेक्ट होगा उनकी ड्राइविंग पे, और अगर उन्होंने ब्लूटूथ रखा है तो कम इफेक्टिव होगा। बट हाँ अगेन ये सिर्फ मानना है उनका, क्योंकि रिसर्च जो कहती है वो उन्होंने, अब हमें क्या करना, अब हमें बताना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट करके कि क्या हो रहा है। क्योंकि अभी तो लोग लोग बोलते हैं कि मैं 20 साल से फोन यूज कर रहा हूँ, आज तक कुछ नहीं हुआ, एंड मैं हाँ कर सकता हूँ, मैं स्पीड कम करके और गाड़ी चला लेता हूँ, मैंने कंट्रोल हाँ किया हुआ है, मैडम आप चिंता मत करो, मैं कर लेता हूँ। तो यस ये उनके रेस्पॉन्स होते हैं कि मैं हम्म ड्रंक ड्राइविंग भी कर लेता हूँ, मैं अच्छी चलाता हूँ, मेरे से आज तक कभी कंट्रोल लूज नहीं हुआ। तो ये उनके पॉइंट्स होते हैं, वो उनका कॉन्फिडेंस जस्टिफिकेशन है, से एक उनकी तरह से ड्राइव हाँ जस्टिफिकेशंस होते हैं। हम्म बट फिर हमें क्या करना पड़ता है, जो मतलब फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो हम चेक करते हैं। अब वो एक इंसान का जजमेंट है या उनका एक अपना परसेप्शन है कि मुझसे मैं कर लेता हूँ हैंडल। आप ऐसे ही 100 लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करो, आप हम्म उनसे गाड़ी चलवाओ, आप उनसे मतलब सिमुलेटर में चलवाओ बेसिकली, सो दैट इट्स नॉट रिस्की ऑन द रोड्स। तो एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आप उनको सेम सिचुएशन दो कि वो गाड़ी एक तो नॉर्मल चला रहे हैं, एक वो फोन पे बात करते हुए चला रहे हैं, एक वो हम्म जो आप जैसे बोला कि मैप देखते हुए चला रहे हैं, एक कि वो नॉर्मल गाने ही सुन रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो दैट हम्म वो तो आप मान देंगे कि वो तो बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं लगेगा उनको भी, गाने सुनना तो मतलब उसमें तो ध्यान भी नहीं जाता है, बिल्कुल साइड में हाँ चलते रहते हैं। तो हम्म वो उनके हिसाब से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। अब आप चेक करो कि चारों कंडीशंस में उस ड्राइवर ने गाड़ी कैसे चलाई। तो चेक ओके करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, मतलब स्पीड का तो जैसे उन्होंने खुद नहीं बता दिया कि स्पीड हम कम कर लेते हैं, तो दैट इज हाँ करेक्ट, वो स्पीड कम कर लेते हैं। बट क्या स्पीड कम करना ठीक है? प्रोबेबली उनके लिए कुछ एक्सटेंड तक ठीक है। तो जो मेरा स्टडी बताता है वो बताता है कि आपने स्पीड अगर 50% के आसपास रिड्यूस की है, तब तो फिर हम्म भी चांसेस ऑफ क्रैश कम है आपका। बट हम्म आपने अचानक से, आप गाड़ी चला रहे थे, आपके पास फोन आया, आपने फोन उठाया, वो भले ही ब्लूटूथ पे है बट आपने ध्यान पे बात करने के लिए आपने उसको कम किया स्पीड को। हम्म अब पीछे से जो आ रहा था वो आपको अब तक 100 किलोमीटर पे देखता हुआ आ रहा था, और आप हम्म अचानक से 80 हो गए, 60 हो गए। तो हम्म उसको जो ब्रेकिंग हुआ है अचानक से, क्योंकि वो हम्म गाड़ी सामने वाला जो है अचानक से रुका, प्रोबेबली उसको या तो फोन पे बात करते हुए कुछ अचानक इवेंट हो गया, जैसे गाय आ गई सामने से या गाड़ी जी आ जी गई जी अचानक से, और उसको डेरिवेट करना पड़ा। तो ये जो इफेक्ट है वो ना सिर्फ उस फोन वाले पे, अब मान लो उसने 80 से 60 पे आ गया, वो सेफ है, उसने ब्रेक भी लगा लिया टाइम पे, कुछ हुआ भी नहीं। बट वो जो पीछे वाला है जो एंटिसिपेट नहीं कर पा रहा था कि आगे बैक वाला टू बैक रुकेगा, गाड़ी आ रही है बिल्कुल अब उसकी तो गलती भी नहीं है, उसने फोन पे भी बात नहीं की, वो टोटल उस पे था, बट स्टिल मतलब दैट क्रिएट्स ही एन कैन एग्रेशन सफर, ऑन ही और शी अदर्स। कैन सफर एक्चुअली। वो तीसरी या चौथी दैट्स गाड़ी भी सफर कर सकती है इस सारे chaos में, जो आपके एक फोन राइट। अटेंड करने पे या इस तरह की किसी चीज की वजह से इशू आ जाता है। अब जैसे आपने अभी जिक्र किया कि गाड़ी में सिर्फ फोन पे बात करना ही नहीं, साइड में अगर कोई बैठा है और आपसे बात कर रहा है, वो भी एक तरह का डिस्ट्रैक्शन है। हम किसी इमोशनल सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, इमोशंस उसमें आ जाते हैं, आपका ध्यान कहीं और जाता है, किसी व्यक्ति या किसी इवेंट के बारे में, किसी इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, कहीं हम घूमने गए तो उस ट्रिप की बात कर रहे हैं, अचानक आप वहां सोचने लगते हो, तो आपका ध्यान राइट। डाइवर्ट हो रहा है, लगातार हो रहा है। पर जो गाने सुनने वाली बात है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हर काम गाने सुनकर करने की आदत है। वो सुबह उठते हैं, गाना चलाते हैं, उसके साथ ही वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, फिर गाड़ी में भी गाना चला रहे हैं, कई बार ऑफिस में काम करते हुए भी गाने सुन रहे हैं। तो वो उनकी एक साइकोलॉजी होती है एक तरह की कि वी लव टू लिसन टू समथिंग व्हाइल वर्किंग, व्हाइल डूइंग एनीथिंग। सो हाउ डू यू सी दिस, अनाघा, दैट while driving, listening to music is good or bad? If you're keeping it in a very low volume, and if it's the primary purpose is not to listen to the music, that's what we have to understand in Hmm. this case. It's not for listening to music that we are driving, but maybe to, like, rejuvenate or to keep us calm or peaceful. You can actually have a background music or in a very light sound, but one thing that we have to focus is that we should be able to receive all the cues that are coming to us, like honking from the other car, or the sound of the rain, or if you're jumping into a gutter, something, that's kind of sound, and every other sound
that is happening around us has to be audible. This noise cancellation is a very good thing when it comes to music, but when you're driving, this noise cancellation should We never should not happen. use it. That even the type of music, someone is, Exactly. someone gets attracted to a particular kind of song suddenly, and sometimes you don't even care that what is playing behind in that हाँ, background. So मैं ये भी सोचती हूँ कि कई बार अगर हम गजल या कुछ स्लो सॉन्ग सुन रहे हैं तो क्या गाड़ी चलाते हुए इस तरह के गाने सुनते हुए आप सो भी सकते हैं, नींद आ जाए आपको पता चला, या झपकी आ जाए आपको इस तरह Yeah, के there गाने are सुनते हुए, actually ये भी एक studies. बड़ा इशू होगा. There are actually research studies which are saying that according to the pace of the music, our driving pattern also changes. Right. Like if you are हाँ. listening to a very hard rock music while driving, तो अब our तेज driving ड्राइव automatically करोगे. becomes very हाँ. impulsive and we tend Yes. to jump the lane and do Yeah, those things. But if you're listening to a calm one, you will be driving like that. एक और बड़ी दिलचस्प बात होती है सड़क पर, और ये हम सभी करते हैं। खास तौर पर महानगरों में सड़क पर कैमरे की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, तो हम भी स्मार्ट हो गए हैं। हमने लगभग अंदाज़ा लगा लिया है कि दफ्तर के या कहीं भी आने जाने के रास्ते पर कहाँ कहाँ कैमरा लगा हुआ है, और कैमरे के नज़दीक पहुँचते हुए हमारे वाहन की स्पीड लिमिट कंट्रोल में आ जाती है, और कैमरा पार होते ही हम फिर वाहन दौड़ाने लगते हैं। ये कैसी ट्रैफिक साइकोलॉजी होती है नाघा? People disobey. So no matter how much we say or how much we give awareness, people actually disobey. Like I've come across one study wherein when an accident happened, they actually doesn't take those cars or vehicle that are crashed from the road. That is much more effective than keeping the speed limit or the speed cameras, because Of in course. those cases it's mere obeying and obeying to certain rules. We are made to obey the rules, and we always say this: I'm paying the tax and I can't drive on the road as per my wish or what. Those aggressive terms are something that we generally hear. So more than that, it's high time that we use certain kinds of psychological techniques in order to hack the people's mind, like in order to inject certain ideas into the minds, like keeping these kind of vehicles on the roads which are very dangerous, so that once they see that vehicles, they'll have the feeling that, okay, my vehicle can also be into similar danger, or these are the places where I should be careful. So those kind of ideas has to indirectly go inside them. It should be kind of persuasive than influencing. But another issue with that, the cameras and everything, is the speed limits basically is that the system also should look into it. It's not always the driver's fault. You have given them a very wide road. Okay, 4-lane road, 6-lane road, and it's very, the road is demanding that you drive it at 120 km per hour or 100 km per hour. बहुत But अच्छा the issue limit is Vehicle 70 also built in km. that way, yeah. आप इतनी बड़ी एक्सप्रेसवे बना रहे हो और वहां पे आपने स्पीड लिमिट 60 या 70 की रखी है, तो ये तो मतलब प्रोवोक करना है ना It's impossible. हाँ, कि वहां पे 60 की स्पीड से तो लग रहा है कि चली भी है गाड़ी, खड़ी है हमारी गाड़ी, चली नहीं रही है। और आजकल के जो व्हीकल्स आ रहे हैं उसमें तो इम्पॉसिबल है कि आप उतनी अच्छी सड़क पे जो है 70-80 पे चलाओ। सो इट्स मतलब ये मैच नहीं होती। सेफ लिमिट हमें रखना चाहिए, एक सेफ लिमिट हमें रखना चाहिए कि उन व्हीकल्स को रोकना चाहिए जो उस स्पीड लिमिट पे नहीं जाते हैं, नहीं जा रहे कि सबको ही रोक लिया। उनको रोको जिनका इंजन पावर इतना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 2 व्हीलर्स को छोड़ो, 2 व्हीलर्स को उसमें मत अलाउ करो, किसी और रोड पे अलाउ करो। और पुराने व्हीकल्स जो है उनको मत अलाउ करो, ट्रक्स को मत अलाउ करो। ये चीजें मतलब सिस्टम में थोड़ा वो करना चाहिए ताकि ड्राइवर का मैच हो उससे, जो उनके एक्सपेक्टेशंस है वो मैच होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एक और चीज है, आप ह्यूमन बिहेवियर या ड्राइवर्स का जो बिहेवियर एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो क्या वो बिहेवियर व्हीकल के साथ बदलता है? अगर आप स्कूटर या बाइक चला रहे हैं, अचानक से आप गाड़ी चलाने लगते हैं, फिर आप ही हैं जो ट्रक चलाने लग रहे हैं या बस चला रहे हैं, तो क्या वो जो हमारा बिहेवियर होता है वो भी चेंज होता है एज पर द व्हीकल दैट वी आर ड्राइविंग? हाँ, वो आपके ड्राइविंग बिहेवियर डेफिनेटली चेंज होगा अगर आप डिफरेंट व्हीकल्स में हो। आप फॉर एग्जांपल आज आप एक कार चला रही हैं और आपने 5 साल उस कार को चलाया है और फिर आपने एक नई कार ली है, तो अचानक से जो चेंज होता है, दैट चेंज ऑल्सो विल ब्रिंग सम चेंजेस इन योर ड्राइविंग बिहेवियर। बट वो चेंज इतना है कि अगर आप 2 व्हीलर से गाड़ी में शिफ्ट हो रही हैं और या फिर गाड़ी के गाड़ी में ही दूसरा शिफ्ट हो रही है, तो वो थोड़ा कम ज्यादा होगा। आपका एक बेसिक ड्राइविंग नेचर होता है, या तो आप
अग्रेसिव होते हो या आप कंजर्वेटिव होते हो या आप ये एक नॉर्मल रेंज में आते हो, तो फिर वो तो आप हर लेवल पे वैसे ही रहोगे। अगर मैं रिस्की ड्राइवर नहीं हूँ तो मैं स्कूटी भी वैसे ही चलाऊंगी और मैं गाड़ी भी वैसे ही चलाऊंगी। बट अगर ठीक मैं बात। यंग मतलब मैं वो बहुत रिस्की ड्राइवर हूँ, तो मैं स्कूटर भी ऐसे जिगजैग मैनर में चलाऊंगी और गाड़ी फिर भी गाड़ी भी एकदम वैसे कम ही ज्यादा चलाएंगे। स्पीड में कराऊंगी। तो कई वो Yeah, बार एक it's मेरा like, बेसिक you कई know, बार हम the सड़क पे ये environment. बोलते भी हैं कि बिल्कुल ये देखो गाड़ी भी ऐसे चला रहा है जैसे बाइक चला रहे हैं। ये बाइक हमारा चला हमारा एक टर्म होता भी है, वी कमेंट लाइक दिस। अगर आप अपने वाहन में नहीं हैं, आपने ऑटो या टैक्सी ली है, तो भी पीछे बैठे बैठे सड़क पर वाहनों का हाल देखकर गुस्सा आता है। ऐसे में अगर आप लेट हो रहे हैं और आप ड्राइवर से तेज चलाने को या जल्दी करने को कहने ही वाले होते हैं, तभी एक बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा होता है दुर्घटना से देर भली। इसे इग्नोर करके अगर आपने ड्राइवर से तेज चलाने को कह भी दिया तो जवाब मिलता है कि लेट आप हैं, हम नहीं। वैसे ये लाइन बहुत सारे शेयरिंग वाले ऑटो में भी लिखी होती है। ट्रैफिक साइकोलॉजी में कुछ और फैक्टर्स भी काम करते हैं। बहुत सारे लोगों की सोच इस बात पर भी निर्भर करती है कि ड्राइवर मेल है या फीमेल। इतना ही नहीं, सामने या आसपास कोई फैंसी महंगी लग्जरी ब्रांड व्हीकल है या कोई पुराना व्हीकल। आसपास चल रही गाड़ियों की स्पीड कम है या ज़्यादा। ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो ट्रैफिक साइकोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। मेल और फीमेल ड्राइवर्स के बीच में फर्क किया जाता है। ये मेल फीमेल जो फैक्टर है, इसको साइकोलॉजिकली कैसे डील करें, अनाघा आपसे समझते हैं, फिर डॉक्टर पुष्पा पर भी आऊंगी। Okay. Basically, biologically speaking, there are of course differences between various sexes, be it males, females, transgenders, intersex, or anyone. There are biological differences, Accepted. and in the physical build as well as in the hormonal and enzymes and those level also. Agree. Okay. So, but the other fact is that driving is not something that required so much masculine or physical power. So in that sense, there was initially I should say a stereotype that males are better drivers than the females, but recent researchers have actually said that those are actually stereotypes itself, and there are no actual difference. Or आप तो ड्राइवर्स बिहेवियर स्टडी करती हैं डॉक्टर पुष्पा, क्या ड्राइवर बिहेवियर स्टडी करते हुए भी मेल और फीमेल का किसी तरह का फर्क होता है? कैसे देखते हैं इसको? वो भी हम सेम तरीके से देखते हैं। मतलब आप जब मतलब आप एक्सपेरिमेंट्स करा रहे हैं तो आप कुछ लड़कियों को इंक्लूड करिए, कुछ लड़कों को इंक्लूड करिए, एंड देन यू सी द डिफरेंसेस इन देयर ड्राइविंग बिहेवियर। तो उसमें देयर इज नो जनरल कंसेंसस अमंग द रिजल्ट कि अच्छा मेल ही अच्छे हैं कि फीमेल ही अच्छे हैं। सोने पर सुहागा तो तब होता है जब आपकी आंखों के सामने ट्रैफिक रूल्स की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। भारत के लिहाज से बात करूं तो हालत बहुत चिंताजनक है। दुनिया भर के वाहनों का सिर्फ 1% ही भारत में है, लेकिन दुनिया भर में होने वाले सड़क हादसों में से 6% सड़क हादसे भारत में होते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी कहते हैं कि हर साल देश में करीब 5 लाख सड़क हादसे होते हैं। इन हादसों में मरने वाले लोगों में से 65% लोग 18 साल से 35 साल की उम्र के होते हैं। नितिन गडकरी का संसद में बयान है कि 9 अगस्त 2019 को लागू हुए मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट के बाद महज 23 महीनों में यानी जुलाई 2021 तक देश भर में ट्रैफिक वायलेशंस के लिए लगभग 8 करोड़ चालान जारी किए गए हैं। इन चालान की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए थी। इस अधिनियम के लागू होने के पहले यातायात चालानों की संख्या लगभग 2 करोड़ थी, यानी ट्रैफिक चालानों की संख्या में 291% का इजाफा हुआ है। इनमें से 35% चालान दिल्ली में हुए हैं। इस विषय पर पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसे वाक्य भी सामने आए जहां एक ऑटो रिक्शे का चालान 47,500 रुपए का हुआ। वहीं स्कूटी जिसकी कीमत 15,000 रुपए है, उसका चालान 23,000 रुपए का काटा गया। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये कौन लोग हैं जिनका चालान काटा जा रहा है। ये नियमों में रहकर सड़क पर वाहन क्यों नहीं चलाते हैं? नियम तोड़ना मकसद है या मजबूरी?
वाहन चलाते हुए इनकी मनस्थिति कैसी होती होगी, इसे समझना आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है इनमें से कोई आप भी हो जो घर का गुस्सा सड़क पर या सड़क का गुस्सा घर पर निकालते हैं। इससे आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिश्तों पर बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ बात रोड रेज की भी करेंगे, लेकिन इसके आंकड़े देने की जरूरत नहीं है। आए दिन हम खबरों में पढ़ सुन लेते हैं, कभी चौंक जाते हैं तो कभी अफसोस कर लेते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इनोवेटिव रिसर्च इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के एक रिव्यू पेपर में फटल क्रैश एक्सीडेंट्स के लिए कुछ वजहें गिनाई गई हैं, जिन्हें फटल 5 का नाम दिया गया है, और ये हैं स्पीडिंग, ड्रंक ड्राइविंग, फटीग, डिस्ट्रैक्शन एंड नॉट वेयरिंग द सीट बेल्ट। इसी तरह रिस्क ड्राइविंग की कैटेगरी में आता है रेसिंग अदर ड्राइवर्स और व्हीकल्स, tailgating, unsafe overtaking and use of cell phones while driving। जिन लोगों को आप नहीं जानते उन पर अपना गुस्सा उतारना बहुत आसान है। जो आपके गुस्से की जड़ है उनसे इस मामले पर बात करना, उन लोगों और मुद्दों को संबोधित करना कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है। मनोवैज्ञानिक इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये तब होता है जब किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है लेकिन वो इसे व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। आज हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं तो हम इसका कारण भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या गाड़ी चलाते हुए गाली देना ठीक है, इससे रोड रेज के मामले कम हो सकेंगे। Once you start expressing all your rage or aggression onto the other person, that is going to be very dangerous. So one reason is that we doesn't know that there is good part to the emotion named anger. So anger is not always a very bad or a negative thing. Anger can also be expressed in the right way, like being assertive, showing corrective behavior. Say if the other person is having or making some mistakes on the road, you can actually politely stop in front of them and say you shouldn't have done that, that was something bad that you did. Maybe like not in this sentence, but situation appropriately, you can actually have this corrective behavior and you can show your assertiveness in that way. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इनोवेटिव रिसर्च इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के एक रिव्यू पेपर में साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स पर डिटेल में बात की गई है। यहाँ कोशिश की गई है कुछ ऐसे तरीके ढूंढने की जिसमें गाड़ी खुद अपने ड्राइवर की मदद करे। एक ऐसा सिस्टम विकसित किया जाए जो स्ट्रेस, फटीग और ड्राउजीनेस दूर करने में ड्राइवर की मदद करेगा। ड्राइविंग पर रिसर्च करते हुए मुझे एक पुराना रिसर्च पेपर भी मिला। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी अप्लाइड में ये बात साफ की गई है कि ड्राइविंग क्षमता की कमी से नहीं बल्कि असावधानी की वजह से ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। तो क्या सड़क की बनावट, कंधे वाले स्पीड ब्रेकर्स, ऑटो रिक्शाज, रास्ते में आने वाले डेस्टिनेशंस, आसपास का माहौल, मौसम, दूसरे व्हीकल का ड्राइविंग स्टाइल या स्पीड, इन सब का भी हमारी ट्रैफिक साइकोलॉजी से कोई लेना देना है? ये सब चीजें दे आर एग्जैक्टली अफेक्टिंग आवर ड्राइविंग बिहेवियर। वो डिपेंड करता है कि आप कितना उनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कितना नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप डेली एक रूट पे जाते हैं तो आपको पता होता है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रेच जो है इसमें ये सब एक्टिविटीज मिलेगी, आई हैव टू बी मोर केयरफुल अबाउट हियर। और कुछ जगह, जैसे अब आप टोटली नई जगह पे चले गए तो फिर आपको नहीं पता है कि वो वहां पे लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। वहां पे पता चला लोग रोंग साइड में आ रहे हैं, तो यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, बट इन दैट पर्टिकुलर एरिया में भी वो जो शॉर्टकट लेने के लिए लोग जो है रोंग साइड में आ रहे हैं। तो ये अनएक्सपेक्टेड है, आपने कभी बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो यहाँ से आएंगे, तो वो ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। उसके लिए फिर आपको सडनली रिएक्ट करना पड़ेगा। और जहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वहां चाय का ठेला रहेगा, आगे जाएंगे तो जूस का ठेला रहेगा, तो ये आपका एक्सपेक्टेड है, तो यू ट्राई टू अवॉइड इन दैट वे ओनली। तो वो आप पहले से ही थोड़ा एक्सपेक्टेड होता है तो यू रिएक्ट इन दैट वे। तो उतना फर्क पड़ता है एनवायरमेंट का मेजरली कि कितना एक्सपेक्टेड है और कितना अनएक्सपेक्टेड है। तो अनएक्सपेक्टेड थोड़ा डेंजरस हो जाता है, एक्सपेक्टेड है कि वो थोड़ा एग्रेशन और उस पर फर्क पड़ेगा, बट ड्राइविंग यू कैन स्टिल कंट्रोल।
if you know about बिल्कुल it. बिल्कुल It's more like a movie tagline, like, you know, expect the unexpected or something like that. That's what we have to be. बिल्कुल बिल्कुल। ये पूरी बातचीत काफी अच्छी रही, काफी सारे ऐसे टॉपिक्स जो लोग जिनको रोज ही अपने आसपास देखते होंगे, उन चीजों को हमने डिस्कस किया है, तो मुझे उम्मीद है कि इससे लोगों को मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम एंड फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल इनपुट्स। थैंक यू। Thank you, Thank you Dr. for Pushpa and like Thank you. Neha for Yes. inviting us here. Yeah. वाहन चलाना सीखना चाहते हो या कोई भी वाहन चलाते हो, हर कोई यही हिदायत देता है कि वाहन चलाते हुए नजरें सड़क पर। इसी रिसर्च में ये बात भी साफ की गई है कि सिर्फ नजरें सड़क पर होने से बात नहीं बनेगी, आपका ध्यान भी पूरी तरह सड़क पर होना चाहिए। आइए यहाँ सीनियर आई सर्जन डॉक्टर संजय तेवतिया को जोड़ते हैं। नमस्कार डॉक्टर तेवतिया, स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। आप सीनियर आई सर्जन हैं और आज हम बात कर रहे हैं ड्राइविंग साइकोलॉजी की, लेकिन इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंगल होता है कि गाड़ी चलाते हुए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी नजर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, ताकि आपका जो तालमेल है सड़क पर वो बना रहे। तो क्या सड़क पर वाहन चलाते हुए क्या सिर्फ आंखें सड़क पर होना काफी है? नहीं, आंखों के अलावा आपका कंसंट्रेशन, फोकस भी जरूरी है। दूसरी चीज ये कि आप एक्साइटेड स्टेट में ना हो, हाइपर एक्टिव ना हो, आप खुद अपने आप को कूल रखें। आपका टेम्परामेंट भी बिल्कुल कूल होना चाहिए और आपको सामने तो देखना ही देखना है, ठीक है ना? जी जी, लेकिन जैसे अब हम लंबी दूरी पर गाड़ी चलाते हैं, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग करने का शौक होता है लोगों को, कई घंटों तक गाड़ी चलानी है हमें, ऐसे टाइम पे आप लगातार सड़क को देख रहे हैं, आपका ध्यान भी है सड़क पे, ऑफ कोर्स जैसा आपने बताया, इस तालमेल को हम बिठाकर भी रखें, लेकिन आंखें लगातार जब सड़क पर होती हैं तो थकने तो लगती ही हैं। खास तौर पर अगर आंखों की बात करें तो किस तरह से आंखों को आराम दिया जा सकता है? नेहा जी, जब हम लोग लॉन्ग ड्राइविंग पे हों तो उस टाइम पे हमें एक तो अपनी पलकों को जल्दी जल्दी झपकते रहना चाहिए। दूसरी चीज, हमें 1 घंटे की ड्राइविंग के बाद 5-7 मिनट के लिए थोड़ा सा बाहर निकल लें, थोड़ा चहलकदमी भी कर लें और जो विंडशील्ड है उसे क्लीन कर लें बिल्कुल। और अगर नाइट ड्राइविंग कर रहे हैं तो अपना जो लाइट है, फॉग लाइट है एंड नाइट विजन ग्लासेस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम धूप में निकल रहे हैं, धूप में ड्राइव कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फोटोक्रोमिक लेंसेज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे कि आंखें थके ना, आंखों में दिक्कत। क्या ऐसी सिचुएशन में क्विक नैप, बहुत ही हल्की सी नींद, आंखों को आराम देने के लिए आंख बंद करके थोड़ी देर लेट गए, मान लीजिए 10-15 मिनट 20 मिनट अगर सो, ये चीज भी काफी फायदेमंद हो सकती है? नेचुरली अगर आप 10-15 मिनट के लिए आराम कर लेंगे, एक नैप ले लेंगे, तो उससे काफी रिलीफ मिलेगा आपकी आंखों को भी, बॉडी को भी और ब्रेन को भी। कंसंट्रेशन भी आपकी बेटर होगी इसके बाद में। ड्राइविंग करते टाइम थोड़ा सा कपड़े भी थोड़ा टाइट ना हो, क्योंकि स्पेशली आप जीन्स वगैरह थोड़ा टाइट ना पहने, क्योंकि ब्लड क्लॉट बनने की संभावना रहती है। वो क्लॉट कई बार टूट के हार्ट और लंग में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट, पल्मोनरी एम्बोलिज्म वगैरह होने की संभावना रहती है। ओल्ड एज, और अगर सर्जरी तभी हुई है या आप मोटापे के शिकार हैं, तो उसमें लॉन्ग ड्राइव यूजुअली आपको अवॉइड करनी चाहिए। और ड्राइविंग के टाइम पे अपना जो, जिससे कहना चाहिए ना, हाइपर एक्टिव स्टेट में नहीं रहना चाहिए, माइंड बिल्कुल पीसफुल, अदरवाइज एक्सीडेंट और दूसरी चीजें होने की संभावना काफी रहती है। जी जी जी, इन चीजों का जरूर ध्यान रखेंगे हमारे दर्शक। थैंक यू सो मच डॉक्टर तेवतिया। ओके ओके ओके। कई बार आपने सुना होगा कि गाड़ी चलाते हुए कोई सो नहीं सकता है, लेकिन मेरे आसपास और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके आसपास ऐसे कई उदाहरण होंगे। आइए स्लीप एक्सपर्ट डॉक्टर संजय मनचंदा से ही समझते हैं। नमस्कार डॉक्टर मनचंदा, स्वागत है आपका। थैंक यू। आज ये पूरा एपिसोड मैंने ड्राइविंग साइकोलॉजी या ट्रैफिक साइकोलॉजी को लेकर के बनाया, तो इस पे काम करते करते कुछ और सवाल भी दिमाग में आए, जैसे क्या सड़क पर वाहन चलाते हुए कोई सो सकता है, किसी को नींद आ सकती है? देखिए, तकरीबन 1/3 से ज्यादा जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं वो जो है
ड्राइविंग करते वक्त नींद का आभास या टेम्पररी लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन सडनली होता है, डिप, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर सिंगल रीजन फॉर कि आपका जो एक्सीडेंट्स होते हैं या जिस तरीके के हादसे होते हैं उसमें खास तौर पे लॉन्ग ड्राइव्स में आपको सिर्फ जो है 10 सेकंड लगते हैं फुल्ली अवेक से डीप स्लीप में जाते हुए। की वजह से इसका रिएक्शन टाइम पर भी काफी फर्क पड़ता है। तो अगर आपको नींद नहीं भी आई है, झपकी नहीं आ रही है, कोई आपको वो उस तरह से फील नहीं हो रहा है कि आपको 4 सेकंड या 10 सेकंड की नींद आ गई, नैप आ गई या कुछ भी, लेकिन आपका रिएक्शन टाइम भी गड़बड़ हो जाता है ड्राइव करते, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकता है। उसी को ऐसा होता है कि इसी मिसकैलकुलेशन के चलते ही ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। उसको लगता है नहीं आई कैन पास ऑफ द थिंग। कुछ लोग कहते हैं एक कप कॉफी का रख लो गाड़ी के अंदर, सिप करते रहेंगे, दैट विल नॉट हेल्प। लॉस्ट स्लीप इज ओनली कवर्ड बाय गेन्ड स्लीप, इट इज नॉट कवर्ड बाय दीज कि भाई मैं लाउड म्यूजिक लगा लूंगा मैं, उसके बावजूद आप जो है यू विल गो, और जो है डिस्टेंस कैलकुलेशन के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो परसेप्शन and these kind of things, they can all have a problem. And we have a conversation in the car कि कोई बैठा है हमारे साथ या बाइक पे, मतलब किसी भी व्हीकल में हम हैं और बातचीत करते हुए जा रहे हैं, उस बीच में भी नींद आ सकती है। देखिए ऐसा है कि ये डिपेंड करता है कि साथ में हाँ कोई व्यक्ति, कोई दोस्त बैठा हुआ है तो आप बात ज्यादा करेंगे, पर दिस इज ऑल्सो नॉट अ फुल प्रूफ एजेंडा। आप जब चला रहे होते हैं गाड़ी तो कभी कभी ड्राइवर बात कर भी रहा होता है तो भी ही स्वेस सडनली, फिर उसको कहे क्या कर रहे हो आप, तो देन ही ब्रेक्स। तो बेस्ट इसका तो ये होता है कि अगर आपको ये आभास होता है कि आप जो है थोड़ा सा आपका आंखें भारी हो रही हैं, तो बेस्ट इज कि किसी कॉर्नर में जाकर 10 मिनट की नैप ले लीजिए। That is the best. That will be the biggest savior. Rather than having a coffee or music, it may not help. So quick nap जो है जी, तो क्विक नैप जो है वो मदद कर सकती है आपकी। एक और चीज होती है, हम लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग भी करते हैं, कई कई घंटे, 10-10 12-12 घंटे की ड्राइव हमें लेनी होती है। तो इस सारे समय में कितनी देर लगातार गाड़ी चलाना सेफ लगता है आपको? नींद नहीं आएगी, आपको झपकी नहीं आएगी, रिएक्शन टाइम ठीक रहेगा? देखिए इसके अंदर जो है बहुत सारी चीजें इंडिविजुअलाइज्ड होती हैं। कुछ लोग जो है दे कैन ड्राइव फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड्स और कुछ लोग नहीं कर पाते, तो अपनी लिमिटेशन मालूम होनी चाहिए कि अगर आपको किसी भी स्टेज पे ये लगे कि यस आई एम फीलिंग अ बिट टायर्ड, डोंट एक्सटेंड इट, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होगा। उसे बढ़ाइए मत, साइड पे करिए गाड़ी, 15-20 मिनट अलार्म लगा के जो है एक शॉट ले लीजिए, यू विल फील रिजुविनेटेड एंड विल बी एबल टू ड्राइव बेटर। और जहाँ तक है कि कितने घंटे चलाने के, ऐसा इसका कुछ नहीं होता। देयर आर पीपल जो 18-18 घंटे 16-16 घंटे चला लेते हैं, देयर आर पीपल जो 3 घंटे के बाद ही उनको उबासियां आनी शुरू होती हैं, और इसके बेस के अंदर कोई ना कोई स्लीप डिसऑर्डर भी होता है। चांसेस होते हैं कि भाई ये ज़्यादा देर बैठ ही नहीं सकते, कि 3 घंटे के बाद ही स्टार्ट हैविंग स्लीपी एंड से मॉड्यूल में चले जाते हैं, तो इसका मतलब उनकी रात की नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है। जी सही कहा आपने जो भी हिदायतें दी हैं वो भी ध्यान देने वाली हैं, और जो वजहें बताई हैं उन पर भी हम सभी को काम करने की जरूरत है, ताकि ये नौबत ही ना आए, क्योंकि कितना जानलेवा है ये भी आपकी बातों से हम समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर मनचंदा, ये सारी जानकारी हमें देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। आखिर में ये समझना भी जरूरी है कि ड्राइवरलेस कार्स और हाईटेक एआई ड्रिवन कार्स क्या एक्सीडेंट्स, नींद, रोड रेज आदि समस्याओं से मुक्ति दिलाएंगी? सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स को लेकर एक और मेजर एथिकल इशू है, द एबिलिटी ऑफ मशीन्स इन मेकिंग मॉरल डिसीजंस। खैर, सेल्फ ड्राइविंग कार्स की तकनीक और मानसिकता पर जल्द ही विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल तो आप इस पॉडकास्ट में एक्सपर्ट्स द्वारा कही गई बातों, हिदायतों और नसीहतों को ध्यान से सुनें और उनका पालन करें। जीवन और खास तौर से ड्राइविंग ज़रूर आसान हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इस बातचीत ने आपके जीवन में कुछ नया जोड़ा होगा। ट्रैफिक साइकोलॉजी को लेकर सिप्साई वोकल का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा।
इस पॉडकास्ट को आप गाड़ी चलाते हुए, किचन में खाना बनाते हुए, मॉर्निंग या इवनिंग वॉक्स पर, पार्क में बैठे हुए, मेट्रो में सफ़र करते हुए या फिर काम से एक छोटा सा ब्रेक लेकर कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। ये पॉडकास्ट इंग्लिश में है। इसकी हिंदी और अंग्रेज़ी ट्रांसक्रिप्ट nehascope.com पर आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप इस पूरी बातचीत को देखना चाहें तो सिप्साई के YouTube चैनल पर देख भी सकते हैं। सारी ज़रूरी जानकारियाँ डिस्क्रिप्शन में हैं। आप कमेंट्स के ज़रिए अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर करेंगे तो विज्ञान के लिए इस छोटे से प्रयास में आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा।